بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، تو کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتا ہوں آپ بالکل خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری تمام بہنوں اور بھائیوں کے لیے یہ دل سے دعا ہے کہ جن کی اولاد نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو نیک اولاد سے نوازے، اور اس کے علاوہ جن کے والدین زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے، خوشیوں والی زندگی دے، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ تو کیونکہ آج جمعہ ہے تو سبھی جو ہے دعائیں آپ بہن بھائیوں کے لیے ہیں، اور آج کچھ اہم باتیں جو کہ آپ بہن بھائیوں سے ہم دونوں نے شیئر کرنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو مکمل تفصیل کے ساتھ آج کی ویڈیو آپ نے مکمل دیکھنی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میری جو ہے نا بالکل کوشش تھی کہ میں کسی پہ بات نہ کروں، لیکن مجبوراً پھر کسی بھی بات کا جواب دینا پڑ جاتا ہے کبھی کبھی۔ تو پیارے ویورز، کل سکندر نے ویڈیو ڈالی ہے، وہ بہت ساری باتیں کر رہا تھا، تحفے دے رہا تھا، نکاح کی، ادھر کی ادھر کو۔ کہ ہم ان کی ویڈیو دیکھتے کلک بھی نہیں کرتے، حالانکہ ہماری ویڈیو کاپی کر کے وہ بنا رہے تھے۔ ہاں، ہماری ویڈیو کو کاپی کر کے اپنے ویوز بڑھا رہا ہے، اس نے اپنے چینل کو چمکایا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کہ بے ان کا نکاح نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تنسیح نہیں ہوئی، سب سے بڑی بات تنسیح نہیں ہوئی، ٹھیک ہے نا؟ تنسیح کی بات آ جاتی نا، اب آپ یہ سوچے نا کہ آپ کی جو پہلے والی وائف ہے وہ کیا کہہ رہی کہ تنسیح نہیں ہوئی، حالانکہ اس نے آپ سے بھی تنسیح لی۔ خود اس نے 2 سال پہلے سے 1 سال پہلے کیس کیا ہے، 85 لاکھ روپے کا نا مجھ پہ کیس اس وقت بھی موجود ہے جو چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس نے 85 لاکھ روپے کی سامان کی ڈیمانڈ کی تھی، وہ ویڈیو بھی جو ہے نا میرے چینل پہ جاوید ولاگ پہ پیچھے موجود ہے، وہ کھڑی ہوئی ہے، آپ بہن بھائی جا کے دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو آج وہ تنسیح لے کے مجھ سے تو اس نے منہ سے طلاق نہیں لی، پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ جو لائف طلاق نہیں ہے، اس کی بھی طلاق نہیں ہے جب تک وہ منہ سے، کیونکہ ہمارے پاکستان میں یہ قانون ہے جب عورت اپنی مرضی سے تنسیح لے لیتی ہے تو اس کا جو پریویس شوہر ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہ جہاں مرضی ہے چیلنج کر لے، چاہے وہ منہ سے طلاق دے یا نہ دے لے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بات کرتے ہیں، سکندر بات کرتا ہے ان باتوں کی کہ مجھے بتائیں اس جو ہے نا فیصلے کو جہاں پہ مرضی آپ چیلنج کر لیں، اگر عورت اپنی مرضی سے جا کے تنسیح لے لیتی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے دیہات میں جو بھی شادیاں ہوئی ہیں یہاں پہ منہ سے کوئی بھی طلاق نہیں دیتا، تو جا کے یہ مجبوراً تنسیح لیتے ہیں۔ تو ساجدہ نے بھی تنسیح لی ہے مجھ سے اور سامان کا دعویٰ بھی کیا ہوا ہے، تو 2 سال میں اسے مناتا رہا ہوں، اسے 2 سال تو جاوید یاد نہیں تھا۔ آج اچانک سکندر کے پاس آ کے اس نے چینل پہ بیٹھ کے چینل نیا بنا کے، ٹھیک ہے نا، اس نے پہلی ویڈیو میرے خلاف ڈال دی ہے۔ تو پہلی ویڈیو ڈالنے کا اس کا مقصد یہی ہے کہ پہلی ویڈیو ہی ڈالوں گی، کیونکہ صاحب بات ہے صابرہ اور جاوید کا ٹاپک جو ہے نا ٹرینڈنگ پہ جا رہا ہے، اور اپنے دل کی بھڑاس بھی نکال لوں گی۔ اس نے ویڈیو پہ ویڈیو ڈالی ہیں، اب تنسیح لے کے وہ نیو لائف پارٹنر ڈھونڈ رہی ہے۔ جب وہ نیو لائف پارٹنر ڈھونڈ رہی ہے تو کچھ شرم کے مارے اسے کچھ شرم نہیں آتی اس بات کی کہ 4000 کی نوکری کی خاطر اس نے، ٹھیک ہے نا، مجھے چھوڑ دیا ہے۔ 4000 کی نوکری، آپ ویلیو چیک کریں، ٹھیک ہے نا؟ جہاں پہ اسے زندگی کی ساری فیسلٹیز موجود تھی، میں نے اسے یہ کہا آپ 4000 نہ لیں، آپ 10,000 مہینہ مجھ سے لے لیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس نے کہا نہیں، مجھے اس کو یہ کہتے نا کہ آپ کے ساتھ یوٹیوب پہ کام کرے۔ یوٹیوب پہ جب وہ پتہ کیا کہتی تھی، مجھے کہتی تھی میں زندگی میں کبھی یوٹیوب پہ نہیں آؤں گی۔ آج اپنی تو آ گئی ہے، اب آ گئی ہے، آپ چینل بھی تیار کر لی ہے 8-10 ویڈیو ڈال کے، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس نے آلریڈی اپنا لائف پارٹنر ڈھونڈ لیا تھا۔ اور ایک بات کی بالکل مجھے سمجھ نہیں آ رہی، وہ سکندر کے پاس کس لیے آتی ہے، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو بتاتی ہوں، شرم تو اب اسے آتی نہیں ہے۔ وہ ہمیں کہتی نا کہ ہمیں شرم نہیں آتی، شرم اسے آنی چاہیے، کیونکہ ہم نے تو شادی کی ہے، اس نے تو وہ کہتے نا کہ شادی اب کرنی بھی نہیں ہے نجمہ کے بھائی سے، یہ تو آپ کو پتہ ہے نا؟ تو اب رشتے ڈھونڈے جا رہے ہیں، شرم آنی چاہیے۔ ہمارا نام آپ کہتی ہو کہ اس کو شرم نہیں آتی، انہوں نے شادی کی، ان کا نکاح جائز نہیں، آپ کو شرم آتی ہے؟ آپ نے تنسیح لی ہے، آپ کو منہ سے میں نے طلاق نہیں دی، میں قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے آپ کو منہ سے طلاق نہیں دی ابھی تک۔ پھر آپ کس منہ سے یہ سب ویڈیوز بنا رہی ہیں؟ ہاں، کہاں رشتہ ڈھونڈ رہی ہو آپ؟ مجھے بتاؤ نا، یہاں پہ جواب دو اس بات کا۔ اور جو کیس نکاح جائز کبھی نہیں ہوگا جب تک آپ کا لائف پارٹنر، آپ منہ سے اگر طلاق نہیں دی تو آپ کا نکاح تو جائز نہیں ہے، یہ تو قانون، آپ قانون کے پاس گئی ہو، جس طرح صابرہ قانون کے پاس جا کے اپنی تنسیح لے کے آئی ہے، آپ بھی تنسیح آپ نے لی ہے۔ سو ڈونٹ مائنڈ، ٹھیک ہے نا؟ 4000 کی خاطر آپ نے مجھے تھانے پہ بلوایا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اپنے والد کو لے کے آپ کو اس وقت لے لحاظ نہیں آیا، آپ کورٹ میں گئی ہو کہ یہ بندہ، اس بندے سے میں جان چھڑوانا چاہتی ہوں، یہ ہے وہ ہے، میں اپنی نوکری کرنا چاہتی ہوں۔
जब आप मुझे छोड़ गई हो, आपका अब मकसद बनता है हमारी लाइफ में मैं जिससे मर्जी आए शादी करूं। आप होती कौन हो मुझसे पूछने वाली, ठीक है ना। आप अपनी औकात दिखा रही हो इस वक्त, ठीक है ना, बिल्कुल। ठीक है ना। आप जाके मुझे ये बताओ आपका सिकंदर के साथ क्या ताल्लुक है। जिस तरह मैं आपका कजन था तो सिकंदर भी तो वैसे कजन है। आपका कौन सा उसके साथ ऐसा जो है ना डीपली रिलेशनशिप बन गया है कि आप सिकंदर के पास, आपको पता है कि ये बंदे मेरे मुखालिफ हैं जो जाके मैं वीडियो बनाऊंगी, ठीक है ना। और सिकंदर को मैं ये कहना चाहता हूँ कि चैलेंज ऐसे नहीं करते जिस तरह आप कर रहे हो, ठीक है ना। कानून से बढ़ के कुछ भी नहीं होता, ये आपको भी पता है। और एक औरत मजबूर हो के, जब उसका हस्बैंड उसे तलाक ना दे, हमारे देहात में मजबूर हो के तनसीह लेती है, ठीक है ना। और वो अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारना चाहती है। जब तनसीह हो जाती है तो उस बंदे से उस लड़की के सब ताल्लुकात खत्म हो जाते हैं। बात आ जाती है फिर बच्चों की, ठीक है ना। तो बच्चे, क्योंकि कानून ने ये डिसाइड करना है, कानून ने ये फैसला करना है। अब तो इसकी लाइफ है ना, इसकी मर्जी है, ये जहाँ पे मर्जी है जाके बैठे, जहाँ पे मर्जी है जाके रहे। आप तो ये इसका बात कहते हैं कि बच्चों की इसको परवाह नहीं है। आपको कौन सा परवाह थी? बच्चे देना ना देना अल्लाह ताला की, वो कहते हैं ना कि नेमत होती है कि अल्लाह ताला जिसको चाहे दे, जिसको चाहे ना दे। इसमें इंसान का कसूर नहीं होता है। इंसान का कसूर नहीं फिर होता है। आपने सिर्फ इस छोटी सी बात के लिए कि मेरे बच्चे नहीं है, हो सकता था 2-3 साल के बाद आपके बच्चे हो जाते, आपने जावेद को यकीनन इस वजह से वो छोड़ के गई है। हालांकि कसूर भी उसका था। मैं अपनी रिपोर्ट दिखा सकता हूँ, मेरे पास कागजात पड़े हैं जिसपे इसने 85 लाख रुपए मुझ पे केस किया है। और हालांकि इसकी 20,000 का सामान नहीं था जिसमें इसने 85 लाख का केस किया है। और वो भी सामान मेरी गैर मौजूदगी में आके ले गई है, मेरे घर से, मेरे वालदैन से लड़ के। आज किस मुंह से वो ये कह रही है कि जावेद ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। 2 साल का पीरियड कोई मैंने रखता है प्यारे व्यूअर्स। इसके जाने के बाद 10 बंदों को मैंने भेजा इसके घर। सिकंदर लेने गया था और वो सिकंदर जो आज का इसका खैर ख्वाह बना हुआ है ना, वो इसको चैनल तैयार करके दे रहा है। वो इसको अपने पास इसने बिठाया हुआ है। पहले खुद के जो है ना, बस आप क्या कहूँ, अब जुम्मे के दिन है, अपने खुद के अफेयर्स पे गौर करो कि तुम कौन से अफेयर कर रहे हो, किसके साथ अफेयर कर रहे हो, ठीक है। आप हमसे कहते हैं कि हम चुप हैं, तो आपकी किसी बात का हमें पता नहीं है। आप इंशाल्लाह अब आपकी हर बात का जवाब मिलेगा। आपको इंशाल्लाह जवाब भी देंगे। और आपने जो करना है ना आप करें, जाएं, ठीक है ना। हम किसी से नहीं डरते, अल्लाह की ज़ात से डरते हैं। और अल्लाह ताला को हमने जान देनी है, हमने क्या किया है क्या नहीं किया, वो इंशाल्लाह अज़ीज़ आपको अब कोर्ट में पता चल जाएगा, ठीक है ना। आप बेफिक्र हो जाएं, ठीक है ना, टेंशन ना लें। और सोनिया को गाइड करने वाला भी सिकंदर है। और यहाँ पे आपको गांव में बताना चाहता हूँ कि सिकंदर के पीछे भी एक बंदा है। वक्त आया तो इंशाल्लाह उसका मैं नाम लूँगा, वो इसे गाइड करता है। सिकंदर, इसके अलावा जो है ना पीछे 2 बंदे और हैं जो सोनिया को गाइड करते हैं। वो सब ऐसे वीडियोस बना रही है। सोनिया जानबूझ के बच्चों को ला रही है, ठीक है ना, अपनी वीडियोस में, अपने व्यूज बढ़ाने के लिए। और सिकंदर को मैं कहना चाहता हूं कि आपकी वाइफ, क्योंकि ये मेरी वाइफ है, आपकी वाइफ क्या है वो मुझे पता है, ठीक है। आपकी वाइफ ने जो है ना शादी से पहले क्या किया है, शादी के बाद अब क्या कर रही है, ठीक है ना। और ये भी मैं आपको बता दूं, आपकी वाइफ का जो नज़रिया है ना, अल्लाह माफ़ करे, मैं तौबा इस्तग़फ़ार पढ़ता हूँ, सिर्फ टाइम पास है, ठीक है। मुझे ये तो बताओ, कुछ तो इंसान शर्म करता है, पहले अपने गिरेबान में तो झांक लो, ठीक है। हम चाहते हैं हम आपकी इज्जत को ना उछालें, ठीक है ना। फिर आप बार बार मजबूर कर रहे हो हमें कि हम आप पे बात करें। और अगर आप मेरी बात सुने, मेरी वाइफ को अगर ज़्यादा तकलीफ़ है ना, टेंशन है, ये साबरा बैठी हुई है, मैंने उसे मुंह से तलाक नहीं दी, आज आके मेरे घर में रहे, ठीक है, मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ, आ जाए। अभी तो मैंने उसे तलाक नहीं दी ना। सिकंदर, तुम यही बात उससे मनवा लो, उनसे तनसीह ली है, अब हराम निकाह करेगी वो। हाँ। कौन सी इद्दत उसने पूरी की है मुझे बताएं। अभी तक उसने एक दिन भी इद्दत नहीं पूरे की। ऑफिस में जाके बैठती है लोगों के सामने। वो हमें कहते कि उन्होंने इद्दत पूरी नहीं की, वीडियो बनाते थे, यही बात करती ना। तो वो खुद हजारों लोगों के सामने, जहाँ पे वो जाके पढ़ाती थी, वहाँ पे 1000 लोगों के सामने बैठती थी, उनके ये मीटिंग्स होती हैं, जो जिस एनजीओ में 4000 की नौकरी ये कर रही है ना, वहाँ पे मीटिंग्स होती हैं, तो फिर जहाँ पे गैर मर्द आके बैठते हैं, ठीक है ना। वो कर रही है हक ना हक की बातें। इंसान खुद को देख ले, पहले खुद को जांच ले, उसके बाद किसी पे बात तनकीद करना चाहिए। अल्लाह ताला की ज़ात तो है, इतनी गफूर रहीम है, इतनी रहीम है, इतनी करीम ज़ात है, ठीक है ना।
हर इंसान के ऐब छुपाती है। हम इंसान हैं, हम कमजोर हैं, ठीक है। हमें तो किसी से कोई उम्मीद है भी नहीं, क्योंकि और पहले भी इंसानों हमारे को साथ इंसानों सबने से बुरा किया। उम्मीद रखना सबसे बड़ी बेवकूफियत है। क्या इस बात का हमें पता नहीं है? और किस तरह किसी से लड़ना है वो हमें पता नहीं है। आप हमें सिखाओगे, ठीक है ना। और YouTube किसी के बाप का नहीं है, जिस तरह आप बोलते हो, ठीक है ना। हम भी बोल सकते हैं, हमारे हम में भी जबान है, हम भी सब कुछ कह सकते हैं, लेकिन हमारी परवरिश ऐसी नहीं की कि मैंने आपको कहा है, ठीक है ना। हम वो वर्ड यूज नहीं करना चाहते जो आप लोगों ने की है। और यकीन करें, एक एक राज नजमा का, ठीक है ना, सोनिया का ये अब जो साझा कर रही है, ठीक है ना। मुझे ये बताओ, इद्दत के टाइम पे आप लोगों के घरों में जाके बैठती हो, ठीक है ना, अपने चैनल पे काम कर रही हो, कुछ ले लिहाज आपको आता है, ठीक है ना। आपको मैंने तलाक दी है, ठीक है ना। अब कसम से बढ़ के तो कोई बात नहीं होती ना, मैं अल्लाह को जान देनी है, मैंने इसे अपने मुंह से तलाक नहीं दी। फिर क्या कर रही है ये? इद्दत के टाइम पे कहाँ घूम रही है? किसको ढूंढ रही है शादी करने के लिए? कभी एक शौहर आता है, कभी दूसरा शौहर आ जाता है। 2 साल आपको याद नहीं था जवेद, अब याद आ गया, बड़ी बात है। आपने जो 20,000 का मुझे सामान दिया था ना, वो आप लेके जा चुकी हो, ठीक है ना। इसके अलावा मैं इससे कोई, अब इसके अलावा कोई भी इसमें 85 लाख का कहते कि वो 85 लाख का केस है ना, जेज का कहा है। तो मुझे ये कभी पैदा होके भी आपने 85 लाख देखा है? नहीं, मुझे ये बताएं, उसका अबू बूढ़ा हो चुका है, वो हाँ। बेचारा थोड़ी बहुत दवाइयां दे के इसका घर का गुजारा अब्बू करता है। इसका अब्बू, इसके बहन भाई इसे समझाते रहे कि जवेद बहुत अच्छा इंसान है, तुम ऐसा ना करो, नौकरी की खातिर इसे ना छोड़ो, लेकिन इसने किसी एक बंदे की बात नहीं सुनी। जिद में आके ये चली गई, वहां पे बैठी रही। 4 दफा मैं गया मनाने के लिए, लेकिन इसने कोई कोशिश नहीं की कि मैं अपने घर को उजाड़ के आई बैठी हूँ, कुछ तो ख्याल करूँ। फुप्पो मेरी फौत हो चुकी है, मुझे तो अपनी फुप्पो का रोना आता है कि मुझे लगता है कि मैंने ज्यादती की है फुप्पो के साथ, क्योंकि ये मुझे छोड़ के चली गई है, इसने मुझे धोखा दिया है। कोई ऐसा करता है? ठीक है, तो इंसान खुद के बारे में पहले सोच ले, फिर उसके बाद किसी और पे बात करे। और इंशाअल्लाह अजीज, अगर आप लोग चुप ना हुए तो बेफिक्र हो जाएं, ठीक है ना। आपका एक एक राज खोल के रखूंगा यूट्यूब पे, ठीक है ना। अगर आप व्यूज बढ़ाने के लिए हाँ सब कुछ कर रहे हैं ना, आप हमारी इज्जत उछा रहे हैं ना, जब आपकी इज्जत उछलेगी ना, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह किसी की इज्जत को उछालते हैं। तो यूट्यूब पे ना आपको पाबंदी है ना हमें पाबंदी है। बात है ले लिहाज रखने की, हमने भी यूट्यूब पे काम करना है, आपने भी यूट्यूब पे काम करना है। आप जिस तरह बात करेंगे, चाहे सोनिया होगी, आप हो गए, जितनी भी बात करेंगे इंशाअल्लाह अजीज, फिर उसका जवाब जिस तरह आपको मिलता है ना, आप फिर संभल के सुनते आना। बिल्कुल। तो प्यारे व्यूअर्स, बस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। आज हालांकि साबरा मुझे रोकती रही है कि आप ऐसी बातें ना करें, लेकिन मजबूर हो के, ठीक है ना, ये बातें मुझे करनी पड़ी हैं। हम ना जवाब देना तो हमारे 1 महीना सब्र करते हुए हो गया, 1 महीना पूरा सब्र करते हुए है कि जो मेरी प्रीवियस वॉइस उठ के सिकंदर के पास आके बैठती है। सिकंदर ने अब अपने भाई का चैनल भी चलाया है, वो भी मेरा नाम कहा कि जवेद ने चैनल वो डिलीट कर दिया है। 10 चैनल उसने तैयार कर लिए जवेद का नाम लेके कि उसने डिलीट कर दिए हैं। पूरे मुल्क के चैनल मेरे पास थे जो मैंने डिलीट कर दिए हैं। बताओ फिर क्या करोगे? कुछ तो लिहाज करो, कुछ तो शर्म करो। पूरी दुनिया के चैनल आप बनाते थे। अपने चैनल खुद चला रहे हैं, अपनी वीडियोस खुद डाल रहे हैं। मुझे ये बताएं किसी का चैनल बड़ी मुश्किल से बनाते हैं, हमारे खुद को टाइम नहीं मिलता कि हम अपनी वीडियोस को बना लें। आप मुफ्त की उठ के हम पे बातें कर रहे हो, ठीक है ना। तो सिकंदर बेफिक्र हो जाओ, तुम मेरे शागिर्द हो, यहाँ पे खाना खा के गए हो, मेरी माँ से कुरान मजीद पढ़ के गए हो, कुछ ले लिहाज करो, ठीक है ना। और जिस कुरान मजीद की जो तुम पढ़ के गए हो ना, उस पे भी तुमने पानी फेर दिया है। 10 दिन पहले तुम मेरी अम्मी से माफी मांग के गए हो कि अम्मी जान मुझे माफ कर दे, रोते रोते हुए आए हो, और फिर यूट्यूब पे बैठ के बकवासें कर रहे हो। उस वक्त अल्लाह ताला की वो कहते ना कि वो बीमार था, तो इस वजह से उसे याद आया कि शायद मेरी माफी से मेरी तबीयत सही हो जाए। हाँ, अपने आप में भी वो नहीं था। अल्लाह ताला माफ करे, बस अल्लाह ताला किसी को कोई बीमारी ना दे। इंसान को जब वो ठीक हो तो ऐसे नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला कभी भी हाँ, अभी आपकी तबीयत कुछ बेहतर हो गया, ब्लड प्रेशर आपका सेट हो गया, तो आपका ब्लड प्रेशर ये सेट रहेगा जब आप सुकून से रहोगे, ठीक है ना। मैं आखिरी बात करना चाहता हूँ, सुकून से रहोगे तो कोई भी सुकून से आपको जीने देगा। ये बात भूल जाओ कि ठीक है ना, आप बात करोगे तो आपकी कोई तनकीद नहीं करेगा, आपकी वाइफ पे बात नहीं करेगा। सिकंदर मुझे पता है, आपने पैसों की खातिर अपनी वाइफ का पर्दा उठवाया था, कहता था व्यूज नहीं आते जवेद भाई, मैं पर्दा उतरवाना चाहता हूँ अपनी वाइफ का, क्योंकि व्यूज नहीं आते, क्योंकि मैंने जाके अपनी बहन के पास वीडियोस बनानी है, ठीक है ना यार, व्यूज नहीं आता। इतना मुनाफिक
इतना लालची पैसों की खातिर ये इंसान है जना खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, मैंने जिंदगी में ऐसा बंदा नहीं देखा, ठीक है ना, जिसमें इतनी बड़ी मुनाफकत हो। 15 साल ये मेरे घर में आके पला है, ठीक है ना, अब इतना बड़ा हो गया ना, यूट्यूब चैनल इसने अलहदा चलाया है। यहाँ पे जब बना के गया था, ठीक है ना, तो खाना पीना हर चीज इसकी हमारे पास थी। आज तक इसे सास और ससुर याद नहीं था, आज इसे सास और ससुर और सोनिया याद आ रहे हैं, ठीक है। ये बंदा रोता है, फिर तुम्हारे अपने बच्चे हैं ना, मासूम बच्चे हैं, ठीक है, अल्लाह ना करे तुम्हारी वाइफ पे बातें हों, तुम्हारे बच्चों पे कोई बात करे, उनको कोई बद दुआ दे, जिस तरह आप साबरा के साथ कर रहे हो, तो कल को आपको कितना दुख होगा। अल्लाह ना करे कोई आपके घर में कोई बीमारी, दुआ ना भी दूं, मेरे दिल हाँ, में जो तकलीफ है मेरे बच्चों की वजह से, हाँ, क्या वो आप लोगों को नहीं लगेगी? नहीं लगेगी। अगर अल्लाह ना करे आपकी बेटी छोटी को कुछ हो जाए, बड़े बेटे को कुछ हो जाए, किसी को कोई तकलीफ हो जाए किसी की बद दुआ से, मुझे बताओ ये आप सह पाओगे? आपने सिर्फ रोना है। फिर अल्लाह की लाठी बे आवाज है, अल्लाह की लाठी से डरो। किसी की बहन पे, किसी की कज़न, अपनी कजनों पे, ठीक है ना, और किसी के बच्चों पे, किसी पे बच्चों पे, आप लोगों की हाँ, वजह किसी से के बच्चों पे आप बातें ना करें। शर्म तो उसे अब आती नहीं है। वो कहते हैं ना कि मेरे बच्चों को चलो मुझसे ना मिलने दे, मुझसे हाँ, नहीं मिलने दे रही ना, वो मेरी जिद में है। उसे ना नानी से ना नाना से किसी से नहीं मिलने दे, सिर्फ एक घर में बंद करके उसने रखा हुआ है, बाहर नहीं हाँ, निकलने देती कि ऐसा ना हो कि बच्चे किसी के साथ अपनी नानी के घर चले जाएं या हाँ, मुझसे मिलने। बिल्कुल। तो इतना जुल्म तो वो मेरे बच्चों के साथ कर रही है, सिर्फ यूट्यूब पे रखने के लिए। अपने पास उन्होंने ऐसे जैसे जेल में नहीं रखा होता बच्चों को, हाँ, खाना दे देते हैं, उनको सिखा पढ़ा के वीडियो में ले आते हैं, हाँ, उसके बाद फिर बच्चे रोते अगर रहते हैं। आपको बच्चों के समाविया मुस्तकबिल की का कॉल आई थी हमें, मैं हाँ, झूठ नहीं बोल रही हूँ, समाविया की कॉल आई थी। वो किसके पास आई थी वो भी मुझे पता है। वो इतनी रो रही थी ना, वो कहती है कि अब मैं जानती हूँ कि मैं ये बात कर रही हूँ, ये बात भी वो मेरी बेटी समाविया को बहुत ज्यादा डांटेंगे मारेंगे कि ये बात क्यों की है। तो उसने यही कहा है कि वो मुझे यही कहते हैं कि अगर आपने एक बार भी अपनी मम्मी से मिलने के लिए गए ना, तो जिंदगी में हम आप लोगों को कभी इधर नहीं आने देंगे। हाँ, वो फिर बच्चों को डराते डरी हैं। हुई थी पूरी रात, वो कहती कि मैं नहीं सोई। नहीं, शर्म सोनिया आनी चाहिए ऐसा सब करने नहीं, में। सोनिया माँ नहीं लगती बच्चों की कि वो उनको ये पास तो उसे बिठा तब के पता बैठी हुई चलेगा, है। अल्लाह करके किसी की बद दुआ ना लगे। हाँ, जब उसकी औलाद होगी ना, तब उसे पता चलेगा किसी की औलाद के साथ कैसे हाँ, करते हैं। और बस प्यारे व्यूअर्स, वीडियो को यही एंड करना चाहता हूँ। बाकी सिकंदर तुम टेंशन ना लो, ठीक है ना, तुम मुझ पे कोई अगर साबरा पे तुम कुछ बात करोगे या मुझ पे बात करोगे, इंशाअल्लाह उल अजीज तुम्हारा अब मैं मुंह तोड़ जवाब दूंगा। तुम्हारी वाइफ क्या है, उसका किरदार क्या है, इंशाल्लाह वो यूट्यूब पे आप बताऊंगा। बिल्कुल। तो बस इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। तो प्यारे व्यूअर्स, बहुत चुप कर लिया, लेकिन ये बंदे चुप नहीं हो रहे थे, जिसकी वजह से मजबूरन मुझे ये वीडियो डालनी पड़ी। हालांकि 10-12 दिन हो गए, मैंने 10-12 दिन पे नहीं, 1 महीना हो गया है, हमने कोई वीडियो नहीं बनाई। और जो तो तुम फिर रही हो ना लोगों के घरों में, ठीक है ना, साजिदा तुम फिर रही हो ना लोगों के घरों में यूट्यूब चैनल बनाने के लिए, ठीक है ना, ऐसे कोई फायदा के नहीं है, ठीक है ना। अपना लाइफ पार्टनर ढूंढो, उसे शादी करो और वीडियोस बनाओ, मेरा कोई इतराज नहीं है। अगर आपने मुझसे मुंह से तलाक लेनी है तो आ जाओ, मैं आपको सबके सामने वीडियो बना के तलाक दूंगा। आपने तनसीह ली है, मुझसे तलाक नहीं ली। तो बहुत शुक्रिया प्यारे व्यूअर्स, ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।